Good morning, students. Today we are going to study the last topic of your chapter planning, that is planning process. Yes, this is the last topic. The topics that is given to you in the textbook after the planning process, they are being deleted by CBSE. So you are going to study only about the concept of planning, importance, features, limitation and planning process. So let's start with the planning process. Now, up till now you might be clear what do you understand by planning, that is what is to be done and how it is to be done. It is always meant for future purpose, that is you are going to decide how the future planning are going to have an impact on the present scenario, and on the basis of that whatever objectives have been set, you try to achieve the objective. So of course it has some rigorous steps or rigorous process are to be done in order to reach to your goal. So let's see what are the steps included in order to do any planning. The very first objective is the setting of objectives. Of course, the planning starts with the setting of the organizational objective. Now, every business organization, they establish two types of objective. One is the journal objective and second is the specific objective. Now, journal objective, that is common for each and every organization, overall organization. Whereas specific objective, that means it can be specific to a particular department or to a particular level of management. So every business organization, they set up two journal and specific objectives, short term and long term targets, not only for organization but for each and every department, each and every division, as well as for each and every employee of the organization. Now, why it is important to set the objective? Because it will give a direction to the entire organization so that they can plan their course of action, so that the whatever predetermined goal the organization has set up, it can be achieved. ये जो भी ऑब्जेक्टिव्स आप सेट करते हो वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए. इट शुड बी क्लियरली स्टेटेड and it should be communicated to each and every levels of department as well as to each and every employee. Because अगर लोगों को पता होगा कि क्या करना है, then only they will be able to give their contribution. ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज बिजनेस का एक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है कि उनको उनका ग्रोथ रेट 25% तक बढ़ाना है, सो ये आप 25%, ये क्या हो जाएगा, ये पूरा एक जर्नल ऑब्जेक्टिव है कि हमें 25% का मार्केट शेयर एक्स्ट्रा एक्वायर करना है. अब ये आप कैसे करोगे, तो इट विल बी डिवाइडेड इनटू टारगेट्स फॉर डिफरेंट सेल्स डिपार्टमेंट अपना टारगेट सेटअप करेगा कि हमें 25% ग्रोथ रेट करना है तो हमें कितना मार्केट शेयर इंक्रीज करना पड़ेगा. सिमिलरली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वो अपनी ऑब्जेक्टिव सेट करेगा कि हमें वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाना है, किस तरह से हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को घटाएंगे एंड सो ऑन. सो दिस इज द प्लानिंग प्रोसेस फर्स्ट स्टेप. नाउ द सेकेंड स्टेप इंक्लूडेड इन प्लानिंग प्रोसेस इज डेवलपिंग प्रीमाइसेस. नाउ वी हैव ऑलरेडी सीन कि जो भी प्लानिंग होता है इट इज ऑलवेज मेंट फॉर फ्यूचर. इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन सर्टन अजम्पशंस की फ्यूचर में क्या होने वाला है. तो ये जो अजम्पशन होता है, ये मैनेजर जो अज्यूम करता है कि फ्यूचर में ये चीज हो सकता है, दिस अजम्पशंस आर कॉल्ड प्रीमाइसेस. सो ये जो प्रीमाइसेस है वो क्या होता है, दे आर दी बेसिक मटेरियल जिसके बेस पे आप आपका कोई भी प्लानिंग प्रिपेयर करने वाले हो. प्रीमाइसेस में क्या क्या हो सकता है, तो इट कैन इंक्लूड फोरकास्ट हो सकता है फ्यूचर में क्या होने वाला है, या एग्जिस्टिंग प्लान हमने क्या डेवलप किया है, या कोई भी पॉलिसीज या प्रैक्टिसेस जो हमने पास्ट में फॉलो किया था उसके बेस पे यू आर गोइंग टू प्रिपेयर योर प्लान. अगर आपके प्लानिंग को सक्सेसफुल एंड इफेक्टिव करवाना है तो इट इज वेरी मच एसेंशियल कि ईच एंड एवरी मैनेजर जब भी आप ये प्लानिंग करते हो, अजम्पशंस करते हो या प्रीमाइसेस डेवलप करते हो, तो ईच एंड एवरी मैनेजर शुड बी इन्वॉल्व इनटू दिस प्लानिंग प्रोसेस. एंड ये बहुत जरूरी है कि ईच एंड एवरी मैनेजर दे अग्री, जो भी अजम्पशंस आपने डेवलप किया है, ईच एंड एवरी मैनेजर शुड अग्री टू दैट अजम्पशंस और प्रीमाइसेस. देन द थर्ड स्टेप इज आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन. अब ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी ऑब्जेक्टिव या टारगेट सेटअप कर दिया है, मैनेजर ने अपना अजम्पशन यूज करके उन्होंने प्री प्लान कर दिया है. नाउ द नेक्स्ट स्टेप विल बी टू आइडेंटिफाई ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन. इसमें जैसे कोई भी काम करना है तो बट ऑब्वियस है कि बहुत सारे ऑल्टरनेटिव आपके सामने अवेलेबल हो सकते हैं. ठीक है. तो आपको ये देखना है कि अगर कोई काम आपको करना है तो कौन कौन से ऑल्टरनेटिव आपके सामने अवेलेबल है. सो ये किस तरह से कर सकते हो, तो यू हैव टू कैरी ऑन वेरियस डिस्कशन अमॉन्ग द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि क्या आएगा, न्यू या इनोवेटिव आइडियाज आपके सामने आ सके. बिकॉज जब आप लोगों के साथ डिस्कशन करते हो देन ओनली यू विल कम टू नो डिफरेंट आइडियाज क्या क्या हो सकता है लोगों के माइंड में. सो नेक्स्ट स्टेप विल बी टू आइडेंटिफाई ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन. देन दी फोर्थ स्टेप इज इवेल्युएट ऑल्टरनेटिव कोर्सेज. एक बार आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस है,
then the next step will be you are going to evaluate each and every alternative courses. You are going to find out what are the positive effects of the alternatives as well as what are the negative impact of the what are the negative impacts of the whatever alternatives you have identified. So here it is very much important कि जो भी alternative course of actions है, they are compared with the negatives and positives, how they are going to contribute to the achievement of organizational objective, and you are going to check whether they are feasible and viable or not. जैसे for example अगर आप plan कर रहे हो that you have to install a new machinery ताकि आप आपके प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज कर सके, ठीक है. सो प्रोडक्शन हेड है, उसको बहुत सारे मॉडल्स को कंपेयर करना पड़ेगा, ब्रांड्स ऑफ कौन कौन से ब्रांड्स अवेलेबल है वो देखना पड़ेगा, उसको उसके सुपरवाइजर्स वर्कर्स के साथ डिस्कशंस करने पड़ेंगे, इनिशियल कॉस्ट देखना पड़ेगा, मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होगा, अदर ओवरहेड कॉस्ट क्या होगा बिफोर टेकिंग दिस decision about the machinery to be installed. So you are going to evaluate various alternative courses. After evaluating various alternative courses, the next step is to select the best course of action. So this is the core of planning, the real point of planning and decision making. एक बार आपने अल्टरनेटिव, आप कौन सा अल्टरनेटिव सिलेक्ट करेंगे जो आपके लिए फिजिबल हो, प्रॉफिटेबल हो और जिसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही कम है. लेकिन आप सिर्फ इसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते हो. मैनेजर का जो एक्सपीरियंस है, पर्सनल जजमेंट्स है या उसके इंट्यूशंस है, दैट ऑल्सो यू हैव टू कंसिडर व्हाइल मेकिंग अ फाइनल decision at times, because it may be possible कि to achieve the desired result with one single plan, या फिर you are in many situations managers may have to select more than one course of action also. So after so here in this step you are going to select the best course of action. Now once the good alternative has been selected, a decision has been taken, the next step is of course to implement that plan. एक बार because once the final decision is made, the follow up then the implementation will be done, जहाँ पे you are going to provide directions through planning. यहाँ पे planning को आप actions में convert कर देते हो, that is it involves doing what is required. So यहाँ पे इस stage पे आप बाकी के जो managerial function था जैसे staffing, organizing, directing, controlling, ये सारे बाकी के managerial functions भी ये step में आ जाएंगे. जैसे फॉर एग्जांपल एक बार प्रोडक्शन मैनेजर ने फाइनलाइज कर दिया कि हमें कौन सी मशीनरी इंस्टॉल करनी है, देन दे वुड प्रोसीड विद परचेसिंग ऑफ दी मशीनरीज और ऑर्गेनाइजिंग रॉ मटेरियल्स और अपॉइंटिंग अप्रोप्रिएट वर्कफोर्स. सो इम्प्लीमेंटेशन एंड वंस दी प्लान हैज बीन इम्प्लीमेंट, यहाँ पे आके इस स्टेज पे आके आपका प्लानिंग प्रोसेस रुक नहीं जाता. यू हैव टू अंडरटेक दी फॉलो अप एक्शन. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फॉलो अप एक्शन? दैट इज यू आर गोइंग टू कंपेयर, आपने क्या टारगेट रखा था, व्हाट वाज दी, आपने एक स्टैंडर्ड सेटअप किया है एंड व्हाट इज योर एक्चुअल परफॉर्मेंस, एंड यू आर गोइंग टू कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, सो दैट यू कैन कम टू नो कि हम कोई भी तरह का डेविएशन है या नहीं. अगर डेविएशन है तो अगेन करेक्टिव मेजर्स कैन बी टेकन इन टाइम, सो दैट वॉट एवर डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स आर देयर इट कैन बी अचीव. सो प्लानिंग इज ऑल्सो टर्म्ड एज कंट्रोलिंग डिवाइस. So that's all. With this I am completing with the chapter that is planning, and again I am repeating the next topic, that is the types of planning, stand-up plan and single use plan करके जो आपका next topic है types of plan, it is not there for your board examination. So you have to study only about what do you understand by planning, concept of planning, the features of planning, planning process, importance, limitations. That's all. Thank you.